Hello student, welcome to this lecture in data communication. We are discussing about the digital to digital conversion. So in this lecture we discuss the line coding scheme. So we already know that we already discussed the digital to digital communication, digital to digital conversion. In digital to digital conversion we discuss the different parameters which we are using. In the last lecture, we discussed about the line coding. What do you mean by the line coding? What are the line coding techniques? So in this line coding techniques, we discuss the line coding schemes. So in this line coding schemes, different schemes we are using for the transferring the data digitally from one place to the another place. So what are these techniques we discuss now? So in this line coding scheme, we have the five types of techniques. The first one is the unipolar, second one is the polar, third one is the bipolar, fourth one is the multi-level and multi-transaction. So these are the techniques which we are using for transferring the data digitally from one place to the another place. And with the help of this technique, it is easy to transfer the data. So one by one we can see these techniques, how we can use these techniques, and with the help of this technique, how we can perform the data to transfer. And the techniques here, in this techniques we are plotting the graphs. So with the help of the graph we can understand how the data in this file format is going from one place to the another place. So let's discuss one by one. So again we discuss some parameters depend on this line coding. So in this line coding there is a five types. We are dividing this line coding. The first one is the unipolar, polar and bipolar. So in this unipolar is also divided into the two parts. That the first one is the RZ and second one is the NRZ. So this RZ means return zero and NRZ means non-return zero. So this is the unipolar. So unipolar means what? Only one voltage level, that is positive volt other than zero. It works on only one level. That's why this is the unipolar technique. So how it can be plotted and how we are using, we can see later on. Second thing is that the polar. So in this polar, there is a three types, that is RZ, NRZ and Manchester. So what are these techniques we discuss? This polar means two. So this work on the two level, that is the two voltage level other than zero, that is plus A by 2 and minus A by 2. So generally this deals with these two voltages. The third one is the bipolar. In bipolar, we are using the techniques, that is the AMI, and AMI means alternate mark invention, and pseudo ternary. These two techniques we are using in this bipolar. In this bipolar, the three voltage level, that is positive, negative and zero. We deal with these three voltages. So these are the techniques. हम लोग देखेंगे कि आगे इसमें ये टेक्निक्स में किस टाइप से हम लोग इसमें प्लॉट ड्रॉ करते हैं, कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ये जो टेक्निक्स है इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So in these techniques, what are the parameters and what we have to use, which type of the primitives we have performed to solve these types of the problems, we discuss on that. So the next one is the properties of line coding. So इसमें कुछ properties है, this is very important for solving this problems of for solving this type of line coding. The first property is bandwidth used is reduced. Because of we are using digital to digital transmission or digital to digital conversion, इसमें जो bandwidth होती है बहुत कम यूज होती है.
Second property is this power is efficiently used. So whatever the power we are using, that is efficiently used. The third one is the probability of error is reduced. So the error, whatever the error occur when there is a sender and receiver, and sender sends some data, so receiver received that data at that time. So there is an error in some techniques, but in these techniques, that is the digital to digital conversion, that error is very reduced type. The probability of the error is reduced. Error detection and correction capabilities. Some error, whatever the error is occurs, so detect and correct is capable for in this technique. The next property is crosstalk between the channel must be minimized. Because of the digital transmission, the crosstalk of this channel is minimized. Now before we going to plot this chart, we first discuss this some parameters for the plotting this diagram. That is, we are using this line coding techniques. So there are the 4-5 types of line coding techniques. We already discussed about the unipolar, polar, bipolar, translevel and transist. So these are the 5 techniques we are using. So before we going to plot these techniques, these types, we first discuss some parameters for the plotting. So we already discussed in the previous lecture, there is the data signal and the signal. There is a two things, that is the data and the signals. So this is the one time period. This is the one time period. In this diagram, the dotted line indicates the time period. This dotted line indicates the time period, and whatever this signals is transferred from this time period is the signals. So this is the data and this is the time period line, and this data is transferred from one time period to the another time period. It takes the data. So here the data is 0, 1, 0, 0, 1, 1. So in this way, whatever the time period we are using, so in this diagram, there is the data element and signal element. So this is the data element and this is the time period. So the data element and the signal element is vary in this. So in this diagram, we see how this data element and signal element are used. So this is the diagram, and we discuss the two techniques, that is the RZ and NRZ. Just we have see here in this diagram, there is the RZ and NRZ. So this NRZ means non-return zero and RZ means return zero. So if we are using the NRZ, then we use the data element and signal element. It carries the complete time period. So this is the point. When we are using the NRZ means non-return zero, at that time this time period is completely used by the data element and signal element. If we are using the RZ means return zero type of technique, so in that we use this Z. This is the state, this is the Z, and this is the reverse Z. So when we are using the RZ of technique, we only use the half of the signal element. So this diagram indicates the Z. This is the Z and this is the reverse Z. So it is the point when you are using the RZ means return zero type of technique, in that we use the half of the signal element while we providing the full type of the data element. So this is the main difference. So generally we use कि जब भी हम लोग NRZ टेक्निक यूज करते हैं तो NRZ में हम लोग कंप्लीट जो सिग्नल एलिमेंट है उसको यूज करते हैं, लेकिन RZ जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे सीधा Z
और उल्टा जेड, ये दो टेक्निक, दो चीजें हम लोग यूज करेंगे इन आर जेड में। सो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे आगे की जो भी हम लोग डायग्राम्स लिखने वाले, जो भी हम लोग प्लॉट करने वाले। सो दिस इज दी लाइन कोडिंग टेक्निक की ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने अभी आप लोग को बताया। चलो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसको टेक्निक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे इस चीज को परफॉर्म करेंगे with the help of some examples. So let's start the examples of these all techniques which we discussed in the line coding. So let's start line coding scheme, and in this line coding scheme the first one is the unipolar. So in this unipolar scheme the first one is the NRZ. So unipolar NRZ, we will discuss the unipolar NRZ. So in this unipolar NRZ, this is the digital data is given, that digital data is 1001110. So for plotting the unipolar NRZ, we first draw this type of diagram, that is in this is the 0th line and this is the 1 voltage. So we already know that in a unipolar NRZ, only we deal with the single voltage, that is the 1 voltage. So here we have to write the data, digital data, that is 1001111. In this the dotted line, this dotted line is the time period. So in this we have to start the plotting this unipolar NRZ. So in this the first one is the 1, so it start from this first positive volt, then again it comes the in the 0th line, and that the second one is the 00. So here after the 1 it is 0, so it comes the 0th line, after that 0, again it is 0. Now the next number is the 1, the data is 1, so again it plot to the up direction, that is the 1 1 1, and again it is 0 0 and 1 1. So this is the unipolar NRZ. So in this only one voltage is dealing. So in this, that the voltage level, whenever there is a 1, that is the up voltage, and in the 0 voltage, in this we use the reference line. So this is the first technique, that is the unipolar NRZ. So जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यूनिपोलर NRZ, अब एक और हम लोग ले लेते हैं, दैट इज दी अनदर डिजिटल डेटा, दैट इज 001011110. Here also we have to plot this dotted line. Dotted line means it is the time period. So यहाँ पे ये dotted line में हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया है. अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज 0010110. सो यहाँ पे कैसा है, सबसे पहले 0 है, सो वी स्टार्ट दी 0th लाइन, दैट इज 0, अगेन इट इज 0, सो अगेन 0, देन इट इज 1, सो दिस इज 1, देन 0, दिस इज 1 1 1 and this is the 0. So only one voltage here we are showing, that is the positive volt, और 0 में ये 0th लाइन पे रहेगा. So this is the example of unipolar NRZ. So unipolar NRZ में हम लोगों ने ये दो एग्जाम्पल देखे. Now we discuss the unipolar RZ. We already know that in unipolar RZ means return to 0, and in this we only deal the half Z, that is the half of the signal element. So half of the signal element, we are dealing with the half of the signal element, and that is the Z. So here the digital data is given, that is 1 0 1 1 0 1 0 0. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस इज द टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड के अंदर में दिस इज दी 1. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस इज दी 1, सो हाफ जेड निकाल के यहाँ पे हम लोग ऐसे छोड़ देंगे. फिर उसके बाद दिस इज दी 0, सो जीरोज में ये कंटिन्यू करेंगे ये लाइन, अगेन इट इज दी 1, सो फिर हम यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, अगेन इट इज 1, सो अगेन ही स्टार्ट दी हाफ ऑफ द सिग्नल एलिमेंट, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, अगेन 0 अगेन 1, सो यहाँ पे हाफ ऑफ दी जेड 0 एंड 0, और बाकी इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे.
So this is the technique of the unipolar RZ. So ये इसी के जो दो प्रॉब्लम्स है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। सो दिस इज द यूनिपोलर NRZ एंड यूनिपोलर RZ. So first of all we discuss the unipolar NRZ and how we can here draw the unipolar NRZ. We discuss here now. So in this we have already draw this, that is the time period. This dotted line indicate the time period. So here the digital data is given. So digital data is given here. So we can write here the digital data. So digital data यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, that is 1 0 0 1 1 1 again 0 0 1 0 1 1. ये डिजिटल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है. So according to that we have to perform the unipolar NRZ, that is the non return to 0. अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1. सो 1 के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वोल्ट. सो यहाँ पे आएगा 1, ये इस तरीके से ड्रॉ करके छोड़ देना. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द 0. सो द 0th लाइन, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. अगेन 0, इसको फिर से हम लोग इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे. उसके बाद में है 1 है, तो ये यहाँ पे ऊपर वाली लाइन दैट इज द पॉजिटिव वोल्ट. अगेन इट इज 1, सो इसको ड्रॉ करेंगे. अगेन 1, ये ड्रॉ होगा यहाँ पे. उसके बाद में फिर 0 है, तो 0 को 0 वाले लाइन पे, ये भी 0. दिस इज द 1 एंड देन अगेन 0 1 एंड 1. अब हम इस सभी लाइंस को ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज द यूर यूनिपोलर NRZ, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वोल्ट है उसके बेस पे हम लोग ये पूरी की पूरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये सिग्नल हो गया, इसमें कि सबसे पहला 1 है तो पॉजिटिव वोल्ट में आएगा 0 0, देन 1 1 1, आफ्टर दैट 0 0 1 0 1 1. सो ये हो गया डायग्राम फॉर द यूनिपोलर NRZ के लिए जो डिजिटल डेटा दिया हुआ है. एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल, that is the 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. सो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले डिजिटल डेटा जो हमारे पास में दिया हुआ है. सो द डिजिटल डेटा इज 0, आफ्टर दैट 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 एंड 1. इस तरीके से डिजिटल डेटा दिया हुआ है. अब इस डिजिटल डेटा के बेस पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं यूनिपोलर NRZ. सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये 0 है, सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 तरफ लाइन से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अगेन इट इज 0, अगेन हियर 0, देन देर इज ए 1. सो 1 है तो ये पॉजिटिव वोल्ट पे आएगा. अगेन दिस इज द 0, देन 1 1, then 0 1 0 1, then 0 and 1. इस तरीके से हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आफ्टर दैट इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे. सभी को जो भी लाइंस हमने ड्रॉ किया है इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे. सो इसे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद हमें इस तरीके का एक डायग्राम मिलेगा, जो डायग्राम है आपका यूनिपोलर NRZ, दैट इज नॉन रिटर्न टू 0. ये किसके लिए जो डायग्राम है, दिस इज द यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0, दैट इज द NRZ. इसमें हम लोग सिर्फ एक ही जो वैल्यू है दैट इज दी वो प्लस वोल्ट, उसी पे काम करते हैं. सेकंड ये 0th लाइन पे बाकी का आता है. तो इस तरीके से वेवफॉर्म आपको मिलेगा फॉर यूनिपोलर NRZ. नाउ वी डिस्कस द यूनिपोलर RZ. सो यूनिपोलर RZ, इसको हम लोग देख लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने वही सेम टाइम पीरियड्स वो ड्रॉ करके रखा हुआ है. सो इन दिस टाइम पीरियड फर्स्ट ऑफ यू मार्क द 0. सो दिस इज द 0th लाइन.
and this is the plus voltage. So only we deal with the 0 and plus voltage for the unipolar RZ or NRZ. So we are here discussing the unipolar RZ. So the digital data is given. यहाँ पे digital data दिया हुआ है. So हम लोग इसको यहाँ पे plot कर लेते हैं. So the digital data is that is 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0. So this is the digital data is given. Now we deals with the unipolar RZ. So unipolar RZ, अब हम लोग ये ड्रॉ करने वाले इसके सिग्नल फॉर्म्स. सो जनरली इसमें देखा जाता है कि जब भी हम लोग यूनिपोलर आरजेड की बात करते हैं तो यूनिपोलर आरजेड में हम लोग हाफ सिग्नल यूज करते हैं. जो टाइम पीरियड हमारे पास में जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का हाफ जो सिग्नल है उसको हम लोग यूज करते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं जेड से. सो द फर्स्ट वन इज दी 1. सो 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी हाफ ऑफ द सिग्नल. ये एक जेड निकाल देंगे यहाँ पे और इसको छोड़ देंगे ऐसे. उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल इज दी, नेक्स्ट डेटा इज दी 0. सो ये कंटिन्यू करेंगे. अगेन यहाँ पे 1 है. सो अगेन इसको हम लोग हाफ सिग्नल है जिसको जेड फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं तो ये निकालेंगे. अगेन हियर दैट इज दी 1. सो अगेन इट इज दी हाफ ऑफ द सिग्नल. देन 0. देयर इज नेक्स्ट डेटा इज दी 1. सो अगेन इट इज दी हाफ ऑफ द सिग्नल दैट इज जेड. देन 0 0 1. अगेन इसको हम लोग हाफ ऑफ दी जेड से इंडिकेट करते हैं. उसके बाद में अगेन 1. अगेन इट इज दी हाफ ऑफ दी जेड एंड देन 0 एंड 0. अब इसके बाद ये जो भी डायग्राम हमने निकाला है इसको हम लोग पूरी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग. सो इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद में इस तरीके का एक वेवफॉर्म क्रिएट होगा हमारे सामने. सो दिस इज दी यूनिपोलर आरजेड. सो यूनिपोलर आरजेड में हाफ ऑफ दी सिग्नल यूज होता है फुल डेटा इसमें. तो जो भी टाइम पीरियड है आपका, ये कंप्लीट जो टाइम पीरियड है इसमें हाफ सिग्नल्स यूज होता है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रिटर्न 0. एंड इन द रिटर्न 0, यूनिपोलर रिटर्न 0 में इस तरीके की वेवफॉर्म आपको मिलती है. और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. सो नेक्स्ट हम लोग अगेन इसको फिर मार्क कर लेते हैं. इसको मैंने ड्रॉ करके रखा है टाइम पीरियड का. सो यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट. और यहाँ पे जो डिजिटल डेटा गिवन है वो डिजिटल डेटा हम लोग देख लेते हैं. दैट इज 0 1 1 0. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उसको. दैट इज 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1. अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. सो अगेन द सेम टेक्निक in unipolar RZ we start. So first data is the 0. So here we draw the single line. After that the next data is the 1. So here we draw the half of the signal that is Z. Again here 1, half of the signal that is Z. Then 0. Again here 1, so half of the signal that is Z. Again it is 0. Then 1. Again it is the half of the signal that is Z. Again 1, so Z. Then 0. Continue करेंगे इसको. Again 0. Continue. So after that 1, so half of the signal. And again 1. So again 1, so half of the signal. So आफ्टर दैट हम लोग इसको सभी को ज्वाइन कर देंगे. सो यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद हमें एक सिग्नल मिलेगा एंड दिस सिग्नल इज यूनिपोलर आरजेड, दैट इज द रिटर्न 0. तो इस तरीके से हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं. एग्जाम में ये सब पूछते हैं आपको, तो आपको इस तरीके का यूनिफॉर्म जो भी है आपका यूनिपोलर आरजेड ये आपको निकालना होता है. सो
हमेशा हम लोगों ने याद रखना है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द NRZ then we use this full waveform, and when we are using the RZ then we use the half of the signal. So this is the unipolar RZ. इसके बाद हम लोग देखेंगे polar NRZ. So in this polar NRZ, generally polar NRZ deals with the पॉजिटिव वोल्ट एंड निगेटिव वोल्ट. सो जनरली यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है टाइम पीरियड. सो जब भी हम लोग पोलर NRZ देखते हैं तो पोलर NRZ डील्स विद द टू वोल्टेज, दैट इज द पॉजिटिव वोल्ट एंड निगेटिव वोल्ट. सो पॉजिटिव वोल्ट एंड निगेटिव वोल्ट, एंड दिस इज द जीरोथ लाइन. सो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पोलर NRZ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ही वोल्टेज को यहाँ पे लेंगे, दैट इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, दैट इज द फर्स्ट डिजिटल डेटा हमारे पास में गिवन होगा यहाँ पे. दैट इज डिजिटल डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 110 देन 1101111 ये डिजिटल डेटा यहाँ पे गिवन है. अब इसके बेस पे हमें इसको ड्रॉ करना है, दैट इज द पोलर NRZ. सो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 1 आया है. सो 1 मीन्स दिस इज द पॉजिटिव वोल्ट, 1 अगेन 1. अब जैसे यहाँ पे 0 आता है हमें ये फेज चेंज करना है. सो इट कम्स अंडर द 0, देन अगेन 0, उसके बाद 1 आया है तो 1 ये आपका पॉजिटिव साइड में डील करेगा, 1, then again it is 1, after that 0. so 0 में ये डाउन साइड में आएगा, that is here, that is the 0th volt. again that is 1, फिर ये अप में जाएगा, again 1. so ये again कंटिन्यू करेंगे हम लोग, फिर 0 आ गया, again ये डाउन साइड में आएगा, फिर जैसे ही 1 आएगा again ये अप साइड में जाएगा, 1 1, और इसको यहाँ पे लाके हम लोग छोड़ देंगे जीरोथ लाइन पे. सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द पोलर NRZ. सो पोलर NRZ जनरली पोलर मीन्स 2. सो ये डील करता है आपके दो वोल्टेज, दैट इज द पॉजिटिव वोल्ट एंड निगेटिव वोल्ट. सो इस तरीके से पोलर NRZ की डायग्राम ड्रॉ होंगी. एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. उसके लिए यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन है, दैट इज 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये वोल्टेज लिख लेते हैं, दैट इज 0. सो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे हम लोग डेटा पुट कर लेते हैं कि डिजिटल डेटा जो दिया हुआ है दैट इज 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. तो ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, एंड हियर 0. सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करना है. सो यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है डेटा, सो फर्स्ट वन इज दी 0. सो 0 है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, निगेटिव वोल्टेज से. तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, फिर आया 1, सो ये अप डायरेक्शन में जाएगा, अगेन 1, उसके बाद में 0, फिर ये डाउन डायरेक्शन में आएगा, अगेन 1. सो पॉजिटिव हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे, और निगेटिव वाले जो 0 है उसको निगेटिव वोल्टेज में दिखाएंगे. सो इट इज 0, देन अगेन 1 0, उसके बाद फिर से 1 है यहाँ पे तो ये ऊपर जाएगा, अगेन 0, ये नीचे साइड में आएगा, उसके बाद में फिर से 1 है, सो ये ऊपर जाएगा, एंड 0. इसको यहाँ तक लाके यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द पोलर NRZ. पोलर में जनरली हम लोग दो वोल्टेज पे डील करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव. और जब भी 0 आता है तो वो निगेटिव साइड में ड्रॉ करते हैं, और 1 आता है तो पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द टेक्निक फॉर ड्रॉइंग द पोलर NRZ. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द पोलर RZ. सो ये पोलर RZ में अब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट
when there is RZ means it is the use the हाफ सिग्नल। सो ये RZ क्या करता है, हाफ सिग्नल यूज करता है, और जो NRZ है वो फुल सिग्नल यूज करता है। जो भी आपका जो डेटा लेवल है, जो डेटा एलिमेंट है, पूरा का पूरा डेटा एलिमेंट यहाँ पे जो भी है डेटा एलिमेंट यूज करेगा। लेकिन जो ये आपका RZ है, रिटर्न 0 है, ये हाफ सिग्नल यूज करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज द 0, दिस इज द पॉजिटिव वोल्ट, दिस इज द नेगेटिव वोल्ट, और यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन है। दैट डिजिटल डेटा इज 1100। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दैट इज 1100 1101 यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन है। सो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सो द फर्स्ट वन इज दैट इज द 1। सो हियर इट इज गिवन द फर्स्ट वन इज द 1। सो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। सो हियर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल हाफ जेड यहाँ पे निकालेंगे। 1 अगेन हियर 1। सो ये भी पॉजिटिव वोल्टेज में आएगा। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आ गया 0। सो 0 के लिए हम लोग उल्टा जेड निकालेंगे निगेटिव साइड से। सो दिस इज द रिवर्स जेड, उल्टा जेड निकालेंगे 0 के लिए। अगेन हियर एक उल्टा जेड निकाल रहे हैं हम लोग, दैट इज द रिवर्स जेड। देन 1। सो दिस इज द जेड हाफ, अगेन 1, फिर ये सीधा जेड। और जैसे ही यहाँ पे 0 आता है तो अगेन हम लोग ये टाइम पीरियड से एक उल्टा जेड निकालेंगे। फिर उसके बाद में फिर से 0 आ गया तो फिर से इसको हम लोग टाइम पीरियड में एक उल्टा जेड निकालेंगे। अगेन 1। सो यहाँ से हम लोगों ने एक सीधा जेड निकाला। फिर से यहाँ पे 1 आया तो इसको हम लोग फिर से एक सीधा जेड निकालेंगे। उसके बाद में ये 0 है। सो 0 के लिए हम लोग ये रेफरेंस लाइन से जो भी हमारे पास में दैट इज द उल्टा जेड एक निकालेंगे। और ये आया फिर 1। सो 1 में यहाँ पे ये हम लोगों ने एक सीधा जेड निकाला। और अब जितने भी ये सब बने हैं इनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन करने के बाद इस तरीके का एक वेव फॉर्म हमको मिलता है। एंड दिस वेव फॉर्म इज द पोलर RZ। व्हाई दिस इज द पोलर RZ? बिकॉज in the RZ half of the signal we are using for the टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के लिए हाफ सिग्नल। तो इस तरीके का कुछ वेव फॉर्म्स आपको मिलेगा इन पोलर RZ। सो अगेन वी टेक दी अनदर एग्जांपल। सो यहाँ पे सेकंड एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिजिटल डेटा दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे 0 पॉजिटिव वोल्ट, दिस इज द नेगेटिव वोल्ट। अब इनके थ्रू अब हम लोग यहाँ पे डिजिटल डेटा मार्क करेंगे। सो डिजिटल डेटा हमारे पास में गिवन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिजिटल डेटा, दैट इज 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0। इसके बेस पे हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दैट इज दी पोलर RZ। सो अगेन स्टार्ट। दैट इज दी फर्स्ट क्या दिया हुआ है डेटा, दैट इज दी 1। सो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ दी Z। फिर 0, तो इसमें हम लोग उल्टा Z निकालेंगे। उसके बाद में फिर से 0 आया। सो अगेन वी ड्रॉ दी हाफ ऑफ दी Z, उल्टा Z। फिर आया 1 है तो हम लोग यहाँ पे Z निकालेंगे, सीधा Z। उसके बाद 0। सो इस रेफरेंस लाइन पे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला उल्टा Z। फिर है 1, सो सीधा Z। फिर 0, फिर ये नेगेटिव साइड से एक उल्टा Z निकालेंगे। फिर 1 है, सो 1 के लिए सीधा Z। फिर 0, फिर यहाँ से एक उल्टा Z निकालेंगे। फिर से 0 है, अगेन यहाँ पे लाइन पे एक उल्टा Z निकालेंगे। 1, सो यहाँ पे हम लोग एक सीधा Z निकालेंगे। और 0 तो एक उल्टा Z निकालेंगे। और बाद में ये सभी लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे।
सो है ना इजी टेक्निक। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, दैट इज द पोलर आर जेड। पोलर आर जेड में यह हाफ ऑफ द टाइम पीरियड यूज होता है। सो जनरली ये याद रखना है आपको कि एन आर जेड रिटर्न टू जीरो में फुल जो टाइम पीरियड है वो यूज होता है, लेकिन जब आर जेड आप रिटर्न जीरो लेते हो तो उस टाइम पे ये हाफ ऑफ द, तो इस तरीके का आपको ये सिग्नल बनेगा। सो हम लोगों ने देखा आज की इस वीडियोज में, जिसमें कि डिफरेंट लाइन स्कीम्स देखे हम लोगों ने, लाइन स्कीम देखे। उस लाइन स्कीम में हम लोगों ने डील किया है कुछ लाइन टेक्निक है, लाइन कोडिंग टेक्निक है, जिसमें कि हम लोग यूनिपोलर एनआरजेड और पोलर आरजेड, ये दो चीजें हम लोगों ने देखी है, यूनिपोलर एनआरजेड, यूनिपोलर आरजेड, और वैसे यहाँ पे पोलर आरजेड एंड पोलर एनआरजेड, ये दो टेक्निक हम लोगों ने देखी है। बाकी की टेक्निक्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।